Yes, good morning everyone and welcome to the IP class. So first we will go through the attendance and then we will start the topic. So first is students from 11E, Mr. Sukhjab and Jasmine. Then you have from 11F, Abishi, then Rahul, and then is Harman and Surkhat. So I request everyone to keep your camera in the active state so that we can start the class on time. Okay. So first we will just quickly revise what we have covered in our earlier classes. So last we have discussed that when we shift from the file system to the database system, clear? So like we have seen the application of the database, then we discussed file system to DBMS. We basically created these three tables. Yesterday we have discussed in the class that we have a student table with these attributes, then guardian table with these attributes, and then third is the attendance attribute. Clear? And you can look at the values also. These are the values which are entered in these attributes on these tables. And this is the attendance table, date of the attendance, then roll number, and then finally is the status. So then we have discussed about the different terms in the DBMS. Yesterday we focused on database schema. Yes, anyone who can elaborate a bit on this database schema? Anyone? Yes, Surkha. Good morning, sir. Yes, good morning. Sir, data schema, it shows the structure of the database. Yes. So basically, database schema is nothing but the structure of the table, clear, that we have. So it talk about that. Okay. So you can see here. So the database schema is the design of the database. Yeah. So the designing part is done in this database schema, where you have to mention the name of the table and the name of the different attributes of the table. Clear? So this is the main diagram. That is how the different people like teachers and office people, they access the database. Then we have the second term that we have discussed is data constraint. So what is this data constraint is? Yes, Avishi. There are some restrictions that should be fulfilled by the data. For example, like primary key or foreign key. Some restrictions should be fulfilled. Yes. So these are the basically conditions that the data has to satisfy. Like you can see here that we have these two constraints, not null constraint and unique constraint. ये कोई बता सकता है ये not null constraint क्या करता है? What the not null constraint does? This is, you can see, this is the not null constraint. So it means that value should not be blank. Yes. So it make sure that the cell is not, but that particular value is not null. You have to put some value over there.
and similarly you have unique constraint, so it ensures that value in a particular field are basically unique, they are not repeated. Then we have discussed the third term is metadata. So metadata is called the data about data. Yesterday told you that when we are creating the attributes, so if we want to store the details of those attributes, so that is basically you can treat it as the metadata or data dictionary. Okay, so let's move to the next term, that is database instance. So database instance, you can see here when we define the database structure of schema, the state of database is empty. So initially हमारे पास database कैसे होगा? The state of the database will be empty because अभी तक हमने इसमें कोई भी data enter नहीं किया. So when you after loading data, the state or snapshot of a database at any given time is called the database instance. तो जैसे मैंने आपको कल की एग्जांपल में बताया था, जैसे हमने देखा कि जो बैंक की ट्रांजैक्शन का स्टेटस है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे, सो दैट इज व्हाट वी हैव द इंस्टेंस ऑफ आवर database, the state of our database at a particular point of time. Okay, so is it clear? Harman Singh, Gurkirat. Okay, so please go through these terms and then you will be having a greater clarity also. Then you see the point number 5 is query. Clear? So as you like query in the class, so similarly we can pose a query to the database. Clear? Like you can see here the example is given, find name of all those students present on this particular date. तो अगर मैं चाहता हूं कि I want to find कि इस डेट को, means you can say the first that is first month is January, day is you take it as the day and this is the year. So इस दिन को कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट है. So what is this? This is a basically a query that we will ask to the, किसको पूछेंगे हम? डेटाबेस से. ठीक है, तो क्वेरी को पूछने के लिए जो हमारे पास लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, that is used to how to implement the query in DBMS. So this is the fifth term, query, very important aspect of DBMS, asking query. Clear? जैसे मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि जैसे बैंक के अंदर कोई कस्टमर आता है, अब कस्टमर बोलता है दैट आई वांट टू चेक द बैलेंस, मेरा बैलेंस बता दो कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं. So that whatever that person is sitting on that seat, he will put the account number of the customer, या उसका कस्टमर आईडी डालेगा या उसका अकाउंट नंबर डालेगा और उसके अकाउंट का स्टेटस क्या आ जाएगा, उसके सामने आ जाएगा. So what is this? This is just the implementation of query. Let us move to the sixth term, that is data manipulation. ऐसा कोई बताएगा इसके बारे में? Data manipulation, we have discussed it yesterday. Very easy, this is data manipulation. हाँ जी अभिषी. I think it is used to update and delete the data. Yes. So manipulation means when we are basically dealing with the updations of the data, inserting the data or deleting the data. So these are the operations that are part of data manipulation. And the last term that we have here is called database engine. So what is this? The database engine is the underlying component or set of programs used by the DBMS. तो जब भी हमने कोई database को create करना है, उसको update करना है, तो उसके लिए जो भी components और या programs use होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? That is the part of database engine. Okay. So this is the one more term. Clear? ये basically जब हम data को retrieve करते हैं, retrieve means when we are applying the query या data को manipulate करते हैं with the help of insert and delete operations. So they are handled by which one? Database engine. So now let us move to the next point, that is
RDBMS जो अभी हमने जो रिजल्ट किया है, that is the example that we have done. Now how it will be implemented in relational database model. Clear? Relational data model, इसको हम ये देखो, that is what we say to this one, ER model भी इसको बोलते हैं, entity relationship data model. So just look at the this figure is there. So you can see these all are the three tables that we have created yesterday. Guardian table, the second is the student table, and third is the attendance table. Okay, so what is there in the guardian table? Guardian table में है guardian की ID, guardian का name, guardian का phone number and address. So guardian ID को हम we can join it with the student table with the help of this guardian ID, क्योंकि guardian ID इधर भी है, guardian ID इधर भी है. Here जो student table है इसमें ये guardian ID जो है it will act as a foreign key. ठीक है, जब भी हमने दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना है we require basically a common attribute. जैसे स्टूडेंट को अगर हमने अटेंडेंस के साथ रिलेट करना है, so you see here roll number is the common attribute. ओके जैसे अगर हमने किसी स्टूडेंट की, जैसे अभी हमने क्वेरी लगाई दैट वी वांट टू फाइंड आउट द अटेंडेंस ऑफ, आई वांट टू चेक कि किसी पर्टिकुलर डेट को कौन कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट था, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी और अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन इस टेबल से आएगी. तो दोनों टेबल को पहले क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा. वी हैव टू ज्वाइन एंड देन यू कैन सी कि which student was present on a particular day. ठीक है, जैसे आज हमने फैच कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने आज क्लास लगाई है, तो पहले मेरे को ये स्टूडेंट टेबल को अटेंडेंस के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा. सो देन मैं क्या करूंगा, मैं उसके अंदर लिख दूंगा जहां जहां पे स्टूडेंट का जो स्टेटस है, वेयर द स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट इज P. मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स को हमने कैसे फैच करना है, जो स्टूडेंट का स्टेटस प्रेजेंट होगा, P होगा, they were there in the class and rest of the students were absent. Okay, so this is about the tables of the database. Now let us see, you can see here यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास टेबल है उसके सारे एट्रीब्यूट्स मेंशन किए हुए हैं और साथ में उसकी राइट हैंड साइड पे क्या किया हुआ है, राइट हैंड साइड पे उसकी डिटेल मेंशन की है. दिस इज द अटेंडेंस टेबल एंड दिस इज द डिटेल एंड दिस इज द गार्डियन टेबल एंड दिस इज द गार्डियन टेबल में जैसे गार्डियन आईडी इज यूनिक आईडी ऑफ द गार्डियन G name is basically the name of the guardian, this is the contact number of the guardian and the last one is the address. तो ये सभी एट्रीब्यूट्स की क्या किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कौन से एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या है. एंड लेट अस सी हियर. यस, तो कोई मेरे को यहां से देख के बताएगा कि क्या इस फिगर में क्या शो किया हुआ है, व्हाट हैज बीन शोन इन दिस फिगर. Yes, anyone? हाँ जी, yes, सुरखाब. So the guardian's information is given over here. तो ये बेसिकली गार्डियन टेबल दिया हुआ है और गार्डियन टेबल में क्या किया हुआ है, वैल्यूज को एंटर किया हुआ है. ठीक है, तो गार्डियन टेबल में क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले गार्डियन की आईडी, उसका नाम, उसका फोन नंबर और गार्डियन का एड्रेस. So how many records are there in this table? How many records are there in this table? Yes, anyone? Sir, 4. 4. So basically 4 records are there in this particular table. You can see here. So 4 is
द कार्डिनैलिटी दैट इज द नंबर ऑफ रोज। तो कार्डिनैलिटी यहाँ पे आएगा, ये 4 नहीं है, 1 2 3 4 5 है। सो कार्डिनैलिटी मीन्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 5 at 4 and the number of attributes, ये attribute है जैसे guardian ID, guardian name, guardian phone number and guardian address. So we have 4 attributes. So we say the degree of this table is or relation is 4 and cardinality of this table is 5. 5 means how many rows are there. Okay, then is that is, you can see here a relation is a flat file, that is each column has a single value and each record has the same number of columns. तो आप देखो जितनी रोज हैं सभी के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है। फाइन, सो रिलेशन हम किसको बोलते हैं, इस टेबल को क्या हम बोलते हैं, दैट इज द रिलेशन एंड दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ द रिलेशन। स्टेट ऑफ द रिलेशन मींस कि रिलेशन के अंदर प्रेजेंटली कितने रिकॉर्ड्स हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद हम इसके अंदर एक और रिकॉर्ड एंटर कर दें, तो तब इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, इट विल कंटेन 6 रिकॉर्ड्स। ओके, तो स्टेट मींस हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर in the table. So next you have attribute. Yes, so कहाँ पढ़ना क्या होता है attribute? Attribute characteristics or parameters for which data are to be stored in a relation. Simply stated, the columns of a relation are the attributes which are also referred as fields. For example, guardian ID, guardian name, guardian phone and address are attributes of relation guardian. Clear? तो जैसे ये अभी हमने अपनी एग्जांपल में देखा अभी, तो इस एग्जांपल में क्या है, ये गार्डियन आईडी दिस इज ए एट्रीब्यूट, गार्डियन नेम दिस इज ए, इसको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, इसको हम फील्ड भी बोलते हैं, इसको हम कॉलम भी बोलते हैं। तो टेक्निकली जो डाटाबेस की लैंग्वेज है उसमें हम इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो गार्डियन फोन नंबर, गार्डियन एड्रेस, सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट इज टपल। Yes, Avishi, आप पढ़ना। Tuple. Each row of a data in a relation table is called a tuple. In a table with n columns, a tuple is a relationship between the n related values. Clear? So you can see here how many tuples are there? 1 2 3 4 5. So 5 tuples or 5 records or 5 rows are there in this particular relation. So next we have domain. Yes, सुखा पढ़ना, ये क्या है domain? Domain. It is a set of values from which an attribute can take a value in each row. Usually, a data type is used to specify domain for an attribute. For example, in student relation, the attribute roll number takes integer values and hence its domain is a set of integer values. Similarly, the set of character strings constitutes the domain of the attribute student name. Clear? तो domain क्या है हमारे पास? So these are the set of values which an attribute can take. जैसे आप अगर हम बात करें, तो अगर हम ID की बात करें तो आप पता है ID हमने क्या, ये देखो we have created a huge basically ID like 1 2 3 4 5 6 7 8 and this 4 12 डिजिट का गार्डियन नंबर हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी सारी वैल्यूज इसी तरह की होगी, नंबर्स में होंगी उसकी। जैसे एड्रेस है, सो यू नो द एड्रेस किस तरह का होता है, हाउस नंबर आ गया, आपकी लोकेलिटी आ गई और आपका सिटी आ गया। क्लियर? जैसे फोन नंबर है, सो फोन नंबर इज बेसिकली 10 डिजिट नंबर इज देयर। सो द सेट ऑफ वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। So let us now move to the 2 more terms are there, degree. तो डिग्री में हम बताते हैं कि एक जो हमारा टेबल है या रिलेशन है उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं या कितने एट्रीब्यूट्स हैं, इसका मतलब होता है डिग्री। और कार्डिनैलिटी होता है कि उसके अंदर कितनी रोज हैं, कितने टपल्स हैं उसके अंदर। सो दैट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशन। और रिलेशन और टेबल एक ही चीज के दो नाम है, चाहे आप रिलेशन बोल दो चाहे आप उसको टेबल बोल दो। So now we have very important points next in the pipeline. 3 points, 3 important properties of a relation. अभी मैंने आपको रिलेशन बताया कि रिलेशन क्या होता है,
ये जो टेबल होता है उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। जैसे अगेन लुक एट द एग्जांपल, this one. So this is, what is this? This is a guardian relation. Okay. Now just look at the properties. There are three properties of relation in the relational data model. Following three properties are observed with respect to relation, which makes a relation different from data file. Yes. Anyone? So let's move to the topic. ठीक है, तो अब हम डिस्कस क्या करते हैं कि जो एक टेबल होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज विच डोंट एग्जिस्ट इन ए डाटा फाइल। जैसे हमने पहले पढ़ा था, दो फाइल्स थी हमारे पास, एक स्टूडेंट डिटेल्स वाली फाइल थी और दूसरी स्टूडेंट अटेंडेंस वाली फाइल थी। अब हमने डिस्कस करना है कि टेबल और फाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो दैट इज दी प्रॉपर्टी नंबर 1 इज, प्रॉपर्टी नंबर 1 सेज इंपोजेस द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। ये एट्रीब्यूट के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज ए यूनिक नेम। सो ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज ए यूनिक नेम। तो आपको पता है कि जैसे ये हमने एक रिलेशन था, तो रिलेशन में गार्डियन आईडी डिफरेंट है, गार्डियन नेम डिफरेंट है, गार्डियन फोन नंबर अलग है और गार्डियन एड्रेस डिफरेंट। सो व्हाट इज दिस? दीज आर दी नेम्स, डिफरेंट नेम्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स। कोई भी सेम नहीं है। ये गार्डियन आईडी, यहाँ पे भी गार्डियन आईडी लिख दिया, तो फिर तो इसका कोई पर्पस ही नहीं हुआ कि अगर हम एक कॉलम को दो बार लिख देंगे। क्लियर? इट मींस द नंबर 1 प्रॉपर्टी इज दैट ईच एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन इज यूनिक, दे आर डिफरेंट। प्रॉपर्टी 1 का ही सेकंड पार्ट है, दैट इज ईच सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशनल इज इमटेरियल। तो इसमें सीक्वेंस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, चाहे आप गार्डियन फोन को नंबर 1 पे ले आओ, चाहे आप गार्डियन एड्रेस को नंबर 1 पे ले आओ, चाहे आप गार्डियन आईडी को लास्ट पे ले जाओ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो किसी भी एट्रीब्यूट की जो पोजीशन है, उसका सीक्वेंस है, उसका रिलेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल रूल दैट द एट्रीब्यूट सीक्वेंस इज इमटेरियल, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। Let us now move to the property number 2. Governs the following rules on a tuple of a relation. तो पहली प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट्स के ऊपर, दूसरी प्रॉपर्टी है टपल्स के ऊपर, मींस रो के ऊपर। So each tuple in a relation is distinct. हर एक रो क्या है, दूसरी रो से क्या होगी? डिस्टिंक्ट होगी, डिफरेंट होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, डाटा वैल्यूज इन नो टपल्स ऑफ द रिलेशन अटेंडेंस कैन बी आइडेंटिकल फॉर ऑल दी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो जैसे अटेंडेंस में है, तो अटेंडेंस में क्या होता है, हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होता है। अटेंडेंस में ये थोड़ी होगा कि सुरखाब का रोल नंबर क्या है, अभिषी का रोल नंबर क्या है, दोनों का रोल नंबर क्या है, डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम। ओके, सो दैट इज ईच टपल इन अ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट। चाहे आप किसी भी रिलेशन की बात कर लो, चाहे आप अटेंडेंस की बात कर लो, चाहे आप गार्डियन आईडी की बात कर लो, गार्डियन की बात कर लो, चाहे आप स्टूडेंट रिलेशन की बात। The point number next is the sequence of tuples in a relational is immaterial. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था एट्रीब्यूट का ऑर्डर, तो ऐसे ही चाहे ये वाली टपल है, ये फर्स्ट है, चाहे इसको सेकंड कर दो, चाहे इसको आप थर्ड कर दो, चाहे आप इसको फोर्थ कर दो, तो किसी भी टपल का जो ऑर्डर है इट इज इमटेरियल, इट इज इनसिग्निफिकेंट। ओके, किसी भी रो को आप नंबर 1 पे लिख दो, चाहे रोल नंबर 1 को आप लास्ट पे लिख दो, चाहे रोल नंबर लास्ट को आप फर्स्ट पे लिख दो, उसका कोई भी रिलेशन के ऊपर कोई भी उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। So let us move to the last point of the day, that is the property number 3. So let us carefully see what is there in the property number 3. First, number 1 is all data values in attribute must be from the same domain. सेम डोमेन का मतलब क्या होता है? सेम डाटा टाइप होनी चाहिए। जैसे गार्डियन आईडी में आप फोन नंबर नहीं डाल सकते, फोन नंबर में आप गार्डियन आईडी नहीं डाल सकते। जैसे स्टूडेंट का नेम है, तो स्टूडेंट के नेम में आप फोन नंबर थोड़ी डाल दोगे। स्टूडेंट का नेम आप स्टोर कर रहे हो, तो वहां पे आप फोन नंबर थोड़ी डाल दोगे, या उसका सिटी थोड़ी डाल दोगे कि जैसे स्टूडेंट का नेम है, मैंने वहां पे दसूहा एंटर कर दिया। सो दैट्स नॉट ए बेसिकली दी
सेम डोमेन, हमने किसी और डोमेन की वैल्यू डाल दी वहां पे। क्लियर? द सेकंड पॉइंट इज ईच डाटा वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। तो ये एटॉमिक का क्या मतलब होता है? एटॉमिक मींस जिसको हम फर्दर बाइफरकेट ना कर पाए। जैसे आप देखो टेबल के अंदर, जैसे ये फोन नंबर है, तो ये फोन नंबर को आप तोड़ थोड़ी सकते हो कि 10 डिजिट की जगह आपने 5 डिजिट स्टोर करने शुरू कर दिए, ऐसे नहीं होगा। सिमिलरली गार्डियन आईडी है तो आपको पूरा का पूरा आईडी 12 डिजिट का एंटर करना पड़ेगा, आप वहां पे 8 डिजिट 9 डिजिट एंटर नहीं कर सकते। तो आप किसी भी चीज को यहाँ पे क्या कर सकते हो? बाइफरकेट नहीं कर सकते। इसको कर सकते हो अभी आप, क्योंकि इसमें क्या है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों इकट्ठे डाले हुए हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम गार्डियन नेम को क्या कर सकते हैं कि इसके फर्स्ट नेम को अलग कर दें और इसके लास्ट नेम को अलग कर दें, 2 एट्रीब्यूट बना दें इसके। क्लियर? तो ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये एटॉमिक नहीं है। रेस्ट ये भी एटॉमिक है, ये भी एटॉमिक है, इसको भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे हम सिटी को अलग कर दें और एड्रेस को अलग कर दें। सो दिस इज नॉन एटॉमिक, दिस इज एटॉमिक, दिस इज नॉन एटॉमिक, दिस इज एटॉमिक। नॉन एटॉमिक का मतलब होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकें, और नॉन एटॉमिक होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। And see the third property here in the property number 3, no attribute can have many data values in one tuple. For example, guardian cannot specify multiple contact number of that ठीक है? तो हम एक एट्रीब्यूट में एक ही वैल्यू डाल सकते हैं, हम मल्टीपल फोन नंबर नहीं डाल सकते। क्लियर? अभी ये हमने प्रीवियस पॉइंट में भी पढ़ा है ये। और लास्ट है हमारे पास द फोर्थ प्रॉपर्टी इज स्पेशल वैल्यू नल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर अननोन। तो नल वैल्यू का हम यूज कहां पे करते हैं? जैसे लेट्स से कोई गार्डियन है, तो हमें उस गार्डियन का फोन नंबर नहीं पता है, तो वहां पे मैं कौन सी वैल्यू डाल दूंगा? नल वैल्यू, कि इस गार्डियन का हमें जो फोन नंबर है वो अननोन है, मेरे को पता नहीं है उसका। जब मेरे को पता लगेगा तो मैं उसको रिकॉर्ड को क्या कर दूंगा? अपडेट कर दूंगा। तो नल वैल्यू का मीनिंग समझ लो, नल का वैल्यू होता है ब्लैंक वैल्यू और एम्प्टी वैल्यू, और इसको हम यूज करते हैं अननोन वैल्यू के लिए। जहां पे हमें किसी चीज का पता नहीं होता वहां पे हम क्या करते हैं? नल वैल्यू का यूज कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी है और थ्योरी है बेटा, इसको एक बार फिर से एनसीईआरटी वाली बुक से एक बार रीडिंग ले लेना। क्लियर? तो क्लास में हमें लगता है कि दैट इज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इजी। क्लियर? बट लेटर ऑन यू फाइंड दैट दे बिकम बिट मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है? इसका प्रिंट निकलवाना है तो प्रिंट निकलवा लो एंड ब्रिंग दैट प्रिंट। जब आपकी थ्योरी की क्लास होती है मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे से फ्राइडे तक, तो आप उस थ्योरी क्लास में ले आओ। और जो भी किसी भी पॉइंट में आपको डिफिकल्टी आती है कि सर हमें एटॉमिक वैल्यू या किसी भी पॉइंट का क्लैरिटी नहीं हो रही, सो प्लीज आस्क इन दी नेक्स्ट क्लास। कोई आप लोगों का क्वेश्चन है, कोई आप लोगों की डाउट है? क्लियर? सो यू ऑल नो दैट in this month your half yearly exam will start. हाफ ईयरली एग्जाम में ये डाटाबेस वाला चैप्टर नहीं आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में पाइथन वाला चैप्टर आएगा, और प्लस एक हमारा वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स रहता है, वो बड़ा इजी है, जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ब्लॉक डायग्राम है। तो वो अभी इस टॉपिक को जल्दी हम बंद करके देन वी विल स्टार्ट दैट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। वो 4-5 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है? वो ऑलरेडी आपने 5th-6th में वो पढ़ा हुआ है वो सारा, व्हाट इज देयर इन द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ठीक है? और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जितने दिन हमारे बचेंगे एग्जाम शुरू होने से पहले, तो फिर हम स्क्रैच से 0 लेवल से पाइथन को शुरू कर देंगे, पहले लेवल से। जिसको कोई भी डाउट है आपको पाइथन में, सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। ये जो आप लोगों का एग्जाम होगा इसमें 35 MCQ आएंगे और 35 मार्क्स की थ्योरी आएगी। उस थ्योरी में मैं आपको बता दूंगा 2 मार्क्स के कितने आएंगे, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? कोई भी आप लोगों की डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। ओके जी?
ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।